دستی رہنما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں. تو آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل سنیں، اور ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو حقیقت ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے قرآن اور احادیث کے مطابق. اور ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اسلام کے اوپر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے، یہود و نصارہ اٹھاتے ہیں، اس کی اصل ذمہ دار کون ہے؟ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو علم ہوگا کہ قرآن شریف کی 26 آیات جو ہیں یا 25 وہ بھی نکالی گئی ہیں، ثم نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ تو اس سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو مولانا صاحب کی سناتا ہوں، اور اس کے بعد آپ دوسری ویڈیو بھی ضرور سنیے گا. جزاک اللہ. اور ویڈیو کو مکمل سنیں. کیونکہ یہ عجمی عربی نہیں ہے، تو حضرت محمد عربی کا اضافہ کروائیں اور آگے آخر النبیین لکھوائیں، خاتم النبیین نہیں، آخر النبیین. کیونکہ خاتم کے جو کئی معنی کرتے ہیں وہ ان میں سے اصل آخر النبیین کا معنی نکالیں آپ. کیونکہ خاتم سے وہاں کا جی مہر ہے، مطلب آپ نبی کی مہر سے آئیں گے آگے نبی، تو آپ تو مارے گئے، آپ کو تو چکر دے گئے وہ. لہذا وہاں یہ کہ محمد عربی آخر النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. تو حکومت جو سندھ ہے یا جو بھی حکومت پاکستان کی، وہ یہ اضافہ کروائیں، اور علماء عوام بیدار ہو کے یہ اضافہ کروائیں. خاتم النبیین کا اضافہ کوئی کمال نہیں ہے، وہ تو قرآن میں پہلے سے اترا ہوا ہے، اس کو تو قادیان انکار کر ہی نہیں سکتے، لیکن اس کے اندر تبدیلیاں کرتے ہیں. لہذا ان کو کہے یہ کریں حضرت محمد عربی آخر النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اضافہ کروائیں گے تو یہ خدمت ہوگی، اور یہ قادیان کے عقیدے کو تو کاٹے گا. خاتم النبیین کا لفظ قادیان کے عقیدے کو نہیں کاٹ رہا، اس لیے کہ وہ تو مانتے ہیں اس کو، لیکن اس کے اندر تعویلیں کرتے ہیں. ان تعویلوں کا آپ جواب کیا دیں گے؟ اس لیے یہ میری حکومت سندھ سے بھی درخواست ہے کہ اگر دستاویز ابھی تکمیل کو نہیں پہنچی، ابھی بل پاس ہوا، آگے لکھت پڑھ ہوگی، تو یہ تبدیلی کریں حضرت محمد عربی آخر النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اضافہ کروائیں. اب پتہ چلے گا کہ یہ قادیانی ہے یا غیر قادیانی ہے. وہ اس کے اوپر سائن کرتے، اس کو مانتے، 10 دفعہ جو اس کو مروڑ اٹھیں گے کہ نہیں یار یہ کیا ہو گیا، محمد سے مراد تو ہم مرزا قادیانی لیتے جو عربی لکھنا پڑ رہا ہے. یہ ہے. تو میری ناقص رائے یہ ہے، پاکستان میں بڑے بڑے اہل علم موجود ہیں، میرے اساتذہ اکابر موجود ہیں، ان سے بھی درخواست ہے کہ اس پر ذرا الرٹ ہو جائیں اور یہ اضافہ کروائیں. انشاءاللہ اگر یہ اضافہ میرا مناسب ہے عقل و علم کی روشنی میں، تو انشاءاللہ یہ خدمت ہوگی انشاءاللہ اہل اسلام کی، اور قادیان کا عقیدہ اس سے مرے گا. آپ کے خاتم النبیین کے اضافے سے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا. جی ناظرین کرام، آپ نے مولانا صاحب کی گفتگو سن لی ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ احمدی جو ہیں وہ خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں. الحمدللہ کہ یہ سچ جو ہے ان کی اپنی زبان سے نکلا ہے، اور ساتھ میں یہ لوگوں کو گمراہ بھی کر رہے ہیں. ان کو مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ آپ اس آیت کا جو ترجمہ ہے اس کو آپ تبدیل کریں. استغفر اللہ. یہ ہمارے دین کے وارث ہیں، ہم لوگ ان کو دین کا وارث کہتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا. تو ان کی زبانی آپ نے سنا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے خاتم النبیین، اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ چینج کر دیں. اگر آپ یہی خاتم النبیین کا مطلب یہی کریں گے تو آپ تو پھر مارے گئے. مطلب کہ ان کے پاس اگر کوئی سیدھا صحیح ترجمہ کریں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ جماعت احمدیہ کے دلائل کا مقابلہ کر سکیں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر لوگوں کو جو ہے اس طرف نہیں آنے دیتے کہ وہ حقیقت کو جان سکیں. تو اب سوال میرا یہ ہے کہ جو قرآن پاک
हमें बिशारत देता है नबूवत जारी की, उन आयत के बारे में क्या करेंगे। मौलाना साहब एक आयत का तो तर्जुमा चेंज करवा देंगे, तो दूसरी आयत जो हैं जिनसे नबूवत जारी रहने की बिशारत दी गई है उनको भी क्या ये चेंज करेंगे। और ये जो अकीदा रखते हैं कि अब अल्लाह ताला हरगिज नबी मबूस नहीं करेगा, उनके बारे में खुदा ताला क्या फरमाता है कुरान पाक में, आइए वो भी देखते हैं। नाज़रीन, ये कुरान पाक की आयत मुबारका है, इस तर्जुमा में पढ़ देता हूँ। और यकीनन तुम्हारे पास इससे पहले यूसुफ भी खुले खुले निशान लेकर आ चुका है, मगर तुम उस बारे में हमेशा शक में रहे हो जो वो तुम्हारे पास लाया, यहाँ तक कि जब वो मर गया तो तुम कहने लगे कि अब इसके बाद अल्लाह हरगिज कोई रसूल मबूस नहीं करेगा। तो इससे साबित होता है कुरान पाक से कि जिस तरह का आपका अकीदा है कि अल्लाह ताला कभी भी नबी मबूस नहीं फरमाएगा, इस तरह का अकीदा पहले भी था लोगों का। तो जो ऐसा अकीदा रखते हैं उनके लिए खुदा ताला फरमाता है कज़ालिका युज़िल्लुल्लाहु मन हुवा मुसरिफन मुर्ताब, इसी तरह अल्लाह हद से बढ़ने वाले और शकूक में मुब्तला रहने वाले को गुमराह ठहराता है। जी मौलाना साहब, खुदा ताला तो कुरान पाक में फरमाता है कि जो इस तरह का अकीदा रखते हैं वो गुमराह हैं। तो खुदा के लिए आप जो हैं, आप खुद तो गुमराह हैं, लोगों को तो गुमराह ना करें, क्योंकि आप लोगों ने भी हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को झुटलाया, उनका इनकार किया कि अल्लाह ताला अब कभी कोई नबी रसूल जो है वो मबूस नहीं करेगा। तो मेरी तमाम गैर अहमदी दोस्तों से दरख्वास्त है जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं कि खुदा के लिए इनसे बचें और ख़ुद सर्च करें, कुरान और हदीस पर अमल करें और अपने बच्चों को और आने वाली नस्लों को इनसे दूर रखें। और मज़ीद अब देखते हैं कि खुदा ताला कुरान पाक में क्या फरमाता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम रसूलुम मिनकुम यकुस्सूना अलैकुम आयाति फमन इत्तका वासलहा फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ऐ बनी आदम, अगर तुम्हारे पास तुम में से रसूल आए जो तुम पर मेरी आयात पढ़ते हों, तो जो भी तक़वा इख्तियार करे और इस्लाह करे तो इन लोगों पर कोई खौफ नहीं होगा और वो गमगीन नहीं होंगे। तो मौलाना साहब, मेरा आपसे ये एक सवाल है कि इस आयत जो है, ये आयत मुबारका, इसका भी आप तर्जुमा क्या चेंज करेंगे या इससे आप इनकार कर देंगे कि हम बनी आदम की ज़ात में से नहीं हैं, वो कोई और बनी आदम हैं जिनके लिए खुदा ताला मुखातिब कर रहा है। जाहिर है अब हमको जो है दोनों में से एक चॉइस करनी पड़ेगी, या हमें ये मुकर जाना चाहिए कि हम बनी आदम में से नहीं हैं, या हमें आपकी बात पर अमल करते हुए गवर्नमेंट को जो आप मशवरा दे रहे हैं कि आयत खातमुन नबीयीन का तर्जुमा चेंज करें, क्या इस आयत का भी आप तर्जुमा चेंज करेंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकाति रुसुलन व मिनन नास इन्नल्लाहा समीउन बसीर। अल्लाह फरिश्तों में से रसूल चुनता है और इंसानों में से भी, यकीनन अल्लाह बहुत सुनने वाला और गहरी नज़र रखने वाला है। तो नाज़रीन कराम, जब हम कुरान पाक पर गौर करते हैं सूरत फातिहा से लेकर सूरत नास की आखिरी सीन के लफ्ज़ तक, तो हमें कोई कुरान पाक से एक लफ्ज़ भी नहीं मिलता कि जिससे नबूवत बंद हो। हमें कुरान पाक पर गौर करना चाहिए। हमें जा बजा सैकड़ों जगह हमें खुदा ताला ने ये बिशारत दी है कि नबूवत जारी है, और ये खुदा ताला की सुन्नत है, वलन तजिद अली सुन्नतिल्लाहि तब्दीला, कि अल्लाह ताला अपनी सुन्नत को तब्दील नहीं करता। तो जिस तरह के नाज़रीन आपने देखा कि खुदा ताला कुरान पाक में जैसा फरमाता है कि जो ये कहते हैं कि अब अल्लाह ताला कभी कोई मबूस नहीं करेगा नबी या रसूल, उनको अल्लाह ताला जो है वो गुमराह ठहराता है। और खुदा ताला ने यह भी फरमा दिया है कि बनी आदम तक, जब तक क़यामत तक बनी आदम है, तब तक अल्लाह ताला रसूल भेजता रहेगा। और अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि अल्लाह ताला रसूल चुनता रहेगा इंसानों में से भी और फरिश्तों में से भी। तो क्या अब हम
इन आयात को भी मौलाना साहब के कहने पर हमारा ये एक सवाल है कि क्या इन आयात मुबारका को भी कुरान पाक से निकालना पड़ेगा या इनका तर्जमा चेंज करना पड़ेगा। खुदा के लिए ये जो कुरान पाक पर हमले हो रहे हैं इसके जिम्मेदार यही हमारे उलमा हैं, तो खुदा के लिए ये सोचें और समझें और खुद इस पर अमल करें। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन, अब आप ये अगली वीडियो सुने जिसमें उन्होंने कुरान पाक की आयात मुबारका निकाली हैं और वो किस तरह उसके सफ़े जो हैं वो फाड़ रहा है। तो क्या ये तौहीन नहीं है कुरान पाक की? और उसको खुद को कहने वाला वो शिया है, तो हालांकि वो अल्लाह और रसूल को भी मानते हैं, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी। तो जब इस तरह के लोग खुद ही हमले करेंगे तो जो हमारे इस्लाम के दुश्मन हैं उनको तो मौका मिलेगा। तो यही वो लोग हैं जिनकी वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है। अल्लाह ताला मरहूम की बख्शिश फरमाए। जो रिजवी साहिब फौत हो गए हैं, उन्होंने जो कत्ल के एक झूठी रवायात पकड़कर उन्होंने जो नारा एक लब्बैक या रसूल अल्लाह का जो एक बुलंद किया पाकिस्तान में, उसकी वजह से पूरे मुल्क में, बाहर की दुनिया में जहां पाकिस्तान रहते हैं, पाकिस्तानी जो लोग रहते हैं, उनके अंदर एक नया जुनून जो है वो बनाया दहशतगर्दी वाला, और जिसकी वजह से ये सारे नज़ारे, कत्ल की धमकियां ये देकर सिखलाकर लोगों को गए हैं। तो जिसकी वजह से आज कुरान पाक से ये आयात मुबारका भी निकाली गई हैं। अल्लाह ताला सबको समझने की तौफीक अता फरमाए और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आप वो पहला कुरान मजीद है, असली कुरान मजीद जो मैंने लिखा है, सही किया है। ये पहली किताब इसकी छप कर आई है। इसको हम मुस्लिम मसल्ला बोर्ड के अध्यक्ष को भेज रहे हैं कि इसको पढ़े और इसका अध्ययन करें कि इनमें से जो हमने 26 आयतों को निकाला है उससे इसमें क्या फर्क पड़ गया, और जो हमने इसके सूरे ठीक किए हैं जो पहले कुरान मजीद में क्रम वाइज सही नहीं थे, जिनको पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान ने अल्लाह की आयतों को कलेक्ट करके किताबी शक्ल में बनाया था ताकि वो दूसरे गैर मुसलमानों मुल्क पर हमला कर सके, वहां कत्लेआम कर सके, उनकी इबादत गाहों को तोड़ सके और वहां लूट कर सके, और बाद में ये कह सके कि ये तो हमारे कुरान मजीद में लिखा था। हमने उन 26 आयतों को इस तरह से इसमें से निकाल दिया है, और अब ये असली वो कुरान मजीद है जो रसूल और रसूल के परिवार वाले, जिनको हम अहले बैत कहते हैं, हजरत अली समेत इमामों तक, उनके चरित्र पर आधारित है। क्योंकि ना रसूल ने, ना हजरत अली ने, ना किसी भी उनकी औलादों में किसी इमाम ने किसी को यह कहकर कत्ल नहीं किया कि यह गैर मुसलमान है, मुशरिक है और काफिर है। क्योंकि इस कुरान मजीद में मुशरिकों, काफिर, गैर मुसलमानों को कहा गया है और उनको कत्ल करने का आदेश दिया गया है। वो चाहे हिंदू हो, चाहे वो किसी धर्म से संबंधित हो, अगर कुरान नहीं मानता है तो वो मुशरिक हो, काफिर है। इसलिए आतंकवाद बढ़ रहा है। इस कुरान को अगर सही तरीके से नहीं पढ़ा गया तो यह आतंकवाद कभी नहीं रुक सकता, क्योंकि मुसलमान कुरान पढ़ के आतंकवादी होता चला जा रहा है। इस असली कुरान मजीद को पढ़ना चाहिए और ऐसी आयतों को निकाल बाहर कर देना चाहिए जो इंसानियत के लिए खतरा हो, जो इंसान को इंसान से दूर करती हो, जो आपस में कत्लो आम को बढ़ावा देती हो। इस्लाम मोहब्बत का मजहब है, जुल्म और ज्यादती का मजहब नहीं है।